Hello, students. So we were discussing about this lesson that is reproduction in lower and higher plants, जिसमें हमने बात की विंड पॉलिनेटर जितने भी प्लांट्स है उसके बारे में, राइट? अभी जो नेक्स्ट पॉलिनेशन है, सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर्स इन प्लांट्स थ्रू वाटर. सो थ्रू वाटर मीन्स हाइड्रा मीन्स वाटर, राइट? सो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उन पॉलिनेशन को बोला जाता है हाइड्रोफिली. सो सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो इस पे अलग से आपको क्वेश्चन या शॉर्ट नोट आ सकता है. सो हाइड्रोफिलिक प्लांट्स, दीज आर नियर अबाउट 30 genera which are present in the aquatic monocots, and these are the names, examples. Vallisneria. Now this example you have to remember for your exam. Adaptations in the hydrophilous flowers. So there are few adaptations which are given, like some flowers, they are small, they are inconspicuous. Inconspicuous means they are very minute. Okay, they are very minute, so they are very smaller in size. They are without smell. Okay, so such type of flowers they are called as inconspicuous. Perianth and other floral flowers, they are unvetable. Unvetable मतलब अगर आपने देखा है लोटस का फ्लावर, राइट, तो अनवेटेबल होता है बिकॉज दैट पार्ट्स दे आर covered with the mucilage. So why is the body of water plants is covered with mucilage? The body of water plants covered with the mucilage to protect it from the decaying from the water. अगर हम पानी में बहुत देर तक प्लांट्स को रखेंगे, अगर वो प्लांट हाइड्रोफाइल नहीं है, हाइड्रोफिलिक नहीं है, तो वो प्लांट सड़ जाएगा, राइट? तो दैट डिकेइंग जो होता है प्लांट्स का, वी वांट टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिकेइंग. ओके, सो सच टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर naturally they occur in water, these are mucilage covered. So mucilage, it protects the plant body from decaying of water. Underwater जो plants होते हैं, and plant which grow on water is called as hydrophytes, or such type of plants they are called as aquatic plants. Okay, so that is why these perianth or such type of plants, they are covered with the mucilage. So you can observe in this diagram now, such type of plants, they are present underwater, they grow inside the water. Now this is the plant that is which is discussed in your lesson, that is Vallisneria, right? Now this plant, it is completely underwater. Okay, now this is another kind of species, Vallisneria spiralis. Now this is again underwater species. Okay, तो ये plants क्या है, they are present under the water. लेकिन even if they are present inside the water, but still as they are mucilage coated, so they are not decayed. Okay, so they are unwettable. Their floral parts or their perianth, it is unwettable. So pollen grains, and they are long in such type of plants. The pollen grains are long, they are unwettable due to presence of mucilage. Nectar and fragrance, they are lacking. ओके, तो उनमें फ्रैग्रेंस भी नहीं होता, उन फ्लावर्स को स्मेल नहीं होता है, उनमें नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है. नेक्टर मतलब जो हम देखते हैं ना, बटरफ्लाईज, हनी बीज फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं क्योंकि उनको कुछ शुगरी जो पार्ट होता है फ्लावर के अंदर जो प्रेजेंट होता है, सो दे सक दो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज नेक्टर. ओके, तो ये जो होता है इन प्लांट्स में एब्सेंट होता है. तो हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह का होता है. एक है हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन, ये हाइपो और जो दूसरा टर्म है दैट इज ईपी हाइड्रो. ओके, सो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको समझना है. हाइपो मतलब इट अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. तो जो पॉलिनेशन है प्लांट्स का इन
इस तरह के पॉलिनेशन का जो पार्ट है उसको बोला जाता है हाइपोहाइड्रोफिली. हाइपोहाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन विच अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. ओके, सो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली. दैट यू हैव टू रिमेंबर. और इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है, इनमें क्या होता है, द पोलन ग्रेन्स they are heavier than water and they sink down and caught by the stigmas of the female flowers. तो इनमें हम बात कर रहे हैं वाटर सरफेस के नीचे जो पॉलिनेशन होता है, वाटर का जो सरफेस है उसके नीचे जो पॉलिनेशन होता है. क्यों होता है नीचे पॉलिनेशन? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन प्लांट्स के, दे आर लिटिल हेवियर. ओके, वाटर से हेवी होते हैं. तो वाटर के अंदर अगर हम हेवी चीज डाल दे तो दैट सिंक्स डाउन, राइट. तो जो सिंक डाउन हो जाता है तो वो नीचे जाते हैं, तब वो स्टिग्मा जो होता है फीमेल फ्लावर का उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं और उसके बाद उसमें पॉलिनेशन हो जाता है. अभी जो दूसरे टाइप का पॉलिनेशन है, दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है एपीहाइड्रोफिली. पर बिफोर गोइंग टू दैट, ये जो पोलन ग्रेन्स है वो किस तरह से होते हैं, इनका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं और विदाउट एक्साइन होते हैं. सो यू नो द एक्साइन एंड इंटाइन पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन. सो दैट पार्ट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन. ओके, एपीहाइड्रोफिली मीन्स द पोलन ग्रेन्स विच फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एंड रीच ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एज वेलिसिनेरिया. ओके, तो एपीहाइड्रोफिली में क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन्स दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस. पहले जो था हाइपो मतलब बिलो द वाटर सरफेस, मतलब पानी के अंदर जाके दे पोलन ग्रेन्स दे सिंक डाउन, तो वो नीचे चले जाते हैं और वो वाइल सिंकिंग डाउन दे caught by the stigmas of the female flowers. ओके, एपीहाइड्रोफिली में वो फ्लोट होते हैं और वो फीमेल के जो स्टिग्मा पार्ट है उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं. Okay, Vallisneria now it is submerged dioecious freshwater aquatic plant. ये है submerged, it is present inside the water. इनमें क्या होता है, female flowers reach the water surface temporarily to ensure pollination and male flowers float on the surface of water. तो female flowers क्या हो जाते हैं, water surface को touch करते हैं. क्योंकि ये वाटर सरफेस के नीचे नहीं होते, वो वाटर सरफेस को टच करते हैं, तो जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उसका, राइट, जो उसको पॉलिनेट करने वाले मेल जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या होते हैं, वो सरफेस पे फ्लोट होते हैं और तब जाके वो फीमेल फ्लावर्स को टच करते हैं, उसके साथ वो फ्यूज हो जाते हैं. ओके, फर्टिलाइज हो जाता है, पॉलिनेट हो जाते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द वाटर. पहले वाला हमने देखा पोलन ग्रेन्स जो थे दे वेर हेवी देन द वाटर. इसमें क्या होता है, इसका जो ग्रेविटी है वो इक्वल टू वाटर होता है. दैट इज वाई दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो ये वाटर सरफेस पे फ्लोट होते हैं. सम एक्वेटिक प्लांट्स दे आर एनिमोफिलस. एनिमोफिलस मतलब ये है वो प्लांट्स जो एक्वेटिक प्लांट्स है लेकिन दे आर एनिमोफिलस. ओके, सम एक्वेटिक प्लांट्स दे आर एंटोमोफिलस. ये थ्रू क्या हो जाता है, कोई बायोटिक एजेंट्स है उसके थ्रू ये पॉलिनेट हो जाते हैं. तो नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द फीमेल फ्लावर. ये आप देख सकते हो, इसमें ये है वाटर लेवल, राइट. यहाँ पे ये वाटर लेवल दिखाया गया है. नाउ दिस इज द वाटर लेवल और ये क्या है, दिस इज द फीमेल फ्लावर जो वाटर के सरफेस के यहाँ पे टच हो रहा है. तो ये जो मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे आके इस फीमेल फ्लावर के साथ इसको पॉलिनेट करते हैं. ओके, ये है मेल एंड फीमेल प्लांट ऑफ द वेलिसिनेरिया. दूसरा है बायोटिक एजेंट्स. ओके, तो जो बायोटिक एजेंट्स है उनमें जो अलग अलग इंसेक्ट्स है, इसके बारे में इसमें डिस्कशन किया है. बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, लेट्स ऑब्जर्व सम डायग्राम्स रिगार्डिंग दिस हाइड्रोफिलिक प्लांट्स. तो ये है हाइड्रोफिलिक प्लांट्स जो मैंने अभी आपको दिखाया. इट इज़ सबमर्ज्ड. ओके, ये आप देख सकते हो एक्वेरियम. ये बहुत सारे अलग अलग डायग्राम है जिसमें वेलिसिनेरिया प्लांट को दिखाया गया है.
अभी इनमें हाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली का हम डिफरेंस देखते हैं इन डायग्राम में. ओके, तो हाइड्रोफिलस होता है मतलब वाटर लविंग या वाटर का जो एफिनिटी होता है वो उसमें ज़्यादा होता है. फ्लावर्स आर फाउंड ओनली इन एक्वाटिक प्लांट्स. दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या होते हैं इनके? फ्लावर्स स्मॉल होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, बहुत छोटे होते हैं. नेक्टर और ओडर इसमें एब्सेंट होता है. लाइट और नॉन वेटेबल इसके पोलन ग्रेन्स होते हैं. म्यूसिलेज उसको कवर करता है. स्टिग्मा लॉन्ग स्टिकी और वेटेबल होता है. टाइप्स क्या है? एपीहाइड्रोफिली है, हाइपोहाइड्रोफिली है. एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है? पॉलिनेशन अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस के ऊपर. एपी. ओके. हाइपो मतलब बिलो, बिलो मतलब सरफेस, वाटर सरफेस जो है उसके बिलो. ओके, तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो. एपीहाइड्रोफिली में क्या है? यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन होता है वाटर सरफेस के ऊपर. और हाइपोहाइड्रोफिली में यहाँ पे नीचे, यहाँ पे पॉलिनेशन होता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसके बारे में. तो इस पे आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंसेस बिटवीन हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिलिक प्लांट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. सो इस पे जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो आप प्रिपेयर करो. डायग्राम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इसमें. ओके, आपको जो कंसेप्ट याद रखने हैं वो अलग अलग कंसेप्ट है. फ्लावर्स के बारे में है या जो इसमें बताया गया है नॉन वेटेबल जो पार्ट है उसके बारे में जो बताया गया है. ओके, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है ये डायग्राम नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, पर हो सकता है प्रैक्टिकल में अगर ये आपको रखा है तो प्रैक्टिकल के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड ऑल, तो ये आपको उसमें याद रखने पड़ेंगे. सो हमने जितने भी अबायोटिक एजेंट्स हैं वो अभी पढ़े हैं, राइट. अबायोटिक एजेंट्स में पहला था जो विंड का पॉलिनेशन हमने देखा, वो वाला पार्ट. और दूसरा है ये है वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया. इसकी जो एडेप्टेशन है हाइड्रोफिलस फ्लावर्स के, ये बहुत 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 ज़रूरी है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने हैं और ये आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं. तो डिफरेंस जो है वो भी आपको ये पूरा याद होना चाहिए. ये पूरा आपको आ सकता है एग्ज़ाम में. ओके, तो जो बायोटिक एजेंट्स हैं इसमें जो आगे दिए हुए हैं दिस बायोटिक एजेंट्स जिसमें आते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर्स या एंटोमोफिली के बारे में है. जो बर्ड्स के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, या फिर बैट्स के थ्रू होता है. तो ये जो पॉलिनेशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू.